السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 30۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تکرار کے انداز میں چیخ پڑی۔ تم مجھے سیٹھی سے بدظن کر رہے ہو، لیکن یہ بات اس کے علم میں آئی کیسے؟ سیٹھی نے کہا، تم نے یقیناً اسے بتایا، یہ غلط بات نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں نے کہا، شراب کے نشے میں دھت اس نے مجھے تمہارے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ میرے بارے میں؟ سیٹھی اچھل پڑا۔ اس نے کیا کیا باتیں بتائی؟ مجھے بتاؤ، اور تم میرے بارے میں کیا جان چکے ہو؟ اس نے بتایا کہ تم گنڈا بدماش اور خود غرض شخص ہو۔ میں اس کا ذہن پڑھتے ہوئے کہنے لگا، دولت کے بھوکے، اور تم نے دولت کے اصول کے لیے اپنی 2 جوان بہنوں کو شیخوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ پھر تم ہندوستان سے لڑکیاں لا کر یہ دھندا کرنے لگے، اور پھر تم نے دبئی میں ہی شانتا کو پھانسا، اسے دھوکہ دے کر ایسی تصویریں بنائی کہ بلیک میل کر سکو۔ تم زیر زمین دنیا کے آدمی ہو، اور تم نے 6 قتل کیے، جن میں دوستوں کی 2 بیویاں بھی ہیں، اور تم نے 13 برس کی 2 لڑکیوں کی آبرو ریزی کی اور انہیں قتل کر دیا کہ کہیں وہ تمہارے بارے میں نہ بتا دیں۔ اس کے علاوہ تم نے 2-3 ڈکیتیاں بھی کیں۔ شانتا نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ وہ 2 عورتوں کو قتل کر چکی ہے، وہ ایک داشتہ کی اولاد ہے، اور بھی اس نے بہت کچھ بتایا تھا۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ تم بھی ناجائز اولاد ہو۔ دونوں بھونج کے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ سیٹھی کی پیشانی ارکلود ہو گئی۔ اس نے تیزی سے کہا، اس وقت ان باتوں کا کوئی موقع نہیں ہے، اس موضوع پر تم سے کسی اور وقت بات ہوگی، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تمہارا قیاس ہے۔ شانتا شراب کے نشے میں دھت ہو کر بھی خود کو قابو میں رکھتی ہے۔ یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ دونوں اندر ہی اندر تلملا رہے تھے۔ ترلوک نے شانتا سے تیز لہجے میں سوال کیا، یہ کب اور کس وقت لانچ میں سوار ہوا تھا؟ مجھے اور میرے دوست کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلا تو میں دونوں کو اتار دیتا۔ جب شام کے وقت گاڑی میں آئی تھی، اس وقت سیٹھی گاڑی میں چھپا ہوا تھا۔ میں تمہارے دوست کو تمہارے گھر لے آئی تاکہ یہ لانچ کی روانگی کے وقت تک چھپا رہے۔ اس طرح تم دونوں کو لانچ سے ہٹانے میں کامیاب رہی۔ سیٹھی کے لیے اتنا موقع کامیاب تھا، اور اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں تھی۔ تم دونوں آسانی سے بے وقوف بن گئے۔ تم بہت ہی خطرناک آدمی ہو سیٹھی۔ ترلوک نے اسے نفرت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ تم نے 2 آدمیوں کو قتل کیا اور ایک عورت کو گولی مار دی۔ پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اور میرے دوست کو بھی قتل کر دو، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ تمہاری جرائم کی فہرست میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کوئی قانون کی ضد سے کبھی نہیں بڑھ سکا۔ تمہیں ان جرائم کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہی حال اس ہرافہ عورت کا بھی ہوگا جو تمہاری مدد کر رہی ہے۔ ترلوک، یہ تم بھینس کے آگے بین کیوں بجا رہے ہو؟ میں نے اسے ٹوکا۔ سیٹھی کی نگاہیں تیزی سے بدلتی جا رہی تھی۔ میں یہ بات کہنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ اس خبیث شخص نے ہماری بے مثال دوستی کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے خوفی سے بولا، اس ہرافہ نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا بھی۔ میں اس بات کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ شانتا کے بارے میں کوئی بھی اس قسم کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ توتے، سیٹھی نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ کیا یہ ہرافہ نہیں، فحشہ اور بد چلن نہیں، طوائف نہیں ہے؟ کیا بردہ فروشی نہیں کرتے ہو اور اس کی کالی راتوں کی کمائی نہیں کھاتے ہو؟ یہ اب تک جانے کتنے مردوں سے میلی ہو چکی ہے۔ میرے دوست کو بھی گندا کر دیا۔ کیا ایک عورت جو… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ نفرت، غصے اور ہیجان سے ترلوک کے سینے میں سانسیں پھول رہی تھی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ترلوک نے سیٹھی کی سخت تنبیہ کے باوجود جو کہنا تھا، اس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا، اور اسے موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سیٹھی ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لہذا جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ ترلوک نے جیسے جلتی پر تیل ڈال دیا، اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سیٹھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
सेठी के चेहरे पर दरिंदगी उभर आई और उसके सूअर जैसी आंखों में सफाकी झलकने लगी। उसके तेवर खतरनाक हो गए और वो तन्हा ही नबर्दे आजमा होने के लिए पर तोलने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां और दांत भी भींच लिए और उसकी आंखों में खून उतर आया। तरलोक ने गैर महसूस अंदाज से इशारा किया था और मैंने उसके इशारे को समझते हुए निहायत तेजी से लांच का पहिया घुमा दिया। सेठी भी डगमगाया और मैंने उस पर छलांग लगा दी। दूसरी तरफ से तरलोक उस पर किसी उकाब की तरह झपटा और उस वक्त शांता के हाथ में जो काफ़ी का मग था वो उसने तरलाक के सर पर दे मारा तो वो वहीं ढेर हो गया। मैं सीधा सेठी पर आया था और वो गाफिल ना था। वो एक छटा हुआ बदमाश और कातिल था, खतरनाक भी था, ज़ैर ज़मीन का था और उसने एक जन्म फुर्ती से होकर पूरी कुव्वत से रिवाल्वर वाला हाथ उठाया। रिवाल्वर की नाल मेरे बाएं आंख से टकराई और फौरन ही खून से भर गई। फिर उसने मुझे संभलने की मोहलत नहीं दी और उसने मेरी टांग पर ठोकर लगाई तो मैं दीवार से जो कैबन की थी घुटना पकड़ कर टकराया तो फिर उठ ना सका। उसके पैर में बड़ी ताकत और जान थी। वो कोई आम किस्म का बदमाश ना था और उसने बैंक में तन्हा डकैती की दलेराना वारदात की थी। वो कैसा जुर्म पेशा था उसका अंदाज़ा किया जा सकता था। तरलोक को हमला करने का मौका न मिल सका और इससे पहले कि वो उठता सेठी ने उसके पेट में ठोकर मारकर उसे दोबारा लड़कने पर मजबूर किया और सेठी पर जैसे जुनून सवार हो गया था। तरलोक के करीब पहुंचकर सेठी ने एक घुटना फर्श पर टिका दिया और उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर दोनों हाथों से थप्पड़ मारे और फिर वो खड़ा हो गया और फिर उसने तरलोक की पिसलियों में एक भरपूर ठोकर लगाई और फिर उसे कोने में उछाल दिया। तरलोक को उसने उस जैसे फुटबॉल बना दिया था और वो सेठी के खिलाफ कुछ न कर सका। मैं फर्श पर पड़ा ये सब कुछ बेबसी से देख रहा था। उस वक़्त मुझे अपना रिवाल्वर बहुत याद आया। अगर रिवाल्वर होता तो इस वक्त वाक़या ही कुछ और होता। बहरहाल जो नहीं होना था वो हो गया था। संगे दिलाना मारपीट की वजह से सेठी खुद भी बुरी तरह हाँफ गया। वो और शेर हो रहा था, पसीने में शराबूर भी हो गया। ताहम उसने रिवाल्वर को मजबूती से पकड़ रखा था इसलिए कि उसका मुकाबला एक से नहीं दो आदमियों था और वो किसी भी वक्त उस पर भारी पड़ सकते थे। वो हमें मौका देना नहीं चाहता था। शांता ने कैबिन के दरवाजे से टिक कर अपने लिए एक सिगरेट सुलगाई, फिर जलती हुई दिया सलाई मेरी तरफ उछाल दी। सेठी कैबिन के वस्त में टांगे फैलाए खड़ा था और उसके रिवाल्वर का रुख मेरी जानब था और वो तड़कते हुए लहजे में बोला, अब अगर तुम दोनों ने ऐसी हरकत की तो तुम्हें समुंदर में फेंक दूंगा गोली मारकर। समुंदर की मछलियां बहुत भूखी हो रही होंगी और उन्हें यूँ भी इंसानी गोश्त एक लजीज डिश की तरह मज़े देता है, बड़ा जायकेदार होता है। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते हुए असबात में सर हिला दिया और उसे ये तासर दे रहा था कि मैं बहुत डर गया हूँ। वो मुझसे करीब ना था, इतनी दूर था कि मैं जिस्त लगाता तो उस पर जाता नहीं था। चंद मिनट पहले मैं अपने आप को काम में ला सकता था, मगर अब उसके हाथ में रिवाल्वर के बायस मैं मजबूर हो गया था। जब मैंने ठीक से खड़े होने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर टांग में उठी थी। मैं टांग पकड़ कर रह गया। ये सब दिखावा था, ऐसी चोट का कि मैं आदी था, लेकिन उसे बेवकूफ़ बनाने और अपने आप को कमज़ोर साबित करने के लिए अदाकारी की ज़रूरत थी। ऐसे लोग जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं वो पहले बेवकूफ़ बनते हैं। वक़्त ऐसा था कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना था। बहादुरी दिखाने का वक़्त अभी नहीं आया था। शांता ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लेकर धुआं मेरी तरफ फूंका। वो मुझे फातहाना नज़रों से देखे जा रही थी। हालांकि इस वक्त मैं उनके रहमो करम पर था, लेकिन उसके ज़हन से मालूम कर चुका था कि वो दुबई पहुंचने तक मेरा और तरलोक का किस्सा ख़त्म नहीं करेंगे। दुबई बहुत दूर था, कई दिनों का सफ़र था। सफ़र के दौरान ऐसा कोई मौका मिल सकता था कि उन दोनों को ज़हर कर लूँ। किसी सूरत में रिवाल्वर का हसूल था। रिवाल्वर उस वक़्त हाथ लग सकता था कि सेठी को काबू में कर लूँ। सेठी ये बात भी जानता था कि रिवाल्वर की अहमियत क्या है। एक तरह से जान की तरह अजीज है और उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लांच में एक अंदाजे और मोटे मोटे हिसाब के मुताबिक 1 अरब के लगभग रकम थी। एक तरह से ये एक ख़जाना था।
सेठी ने बहुत ऊंचा हाथ मारा था। उसके इरादे क्या थे, शांता उससे बेखबर थी। अगर मैं उसे बताता तो वह मेरी बात का यकीन ना करती। सेठी ने उसे 6 माह से दाश्ता बनाकर रखा हुआ था। दुबई के करीब वो हम तीनों को मौत के घाट उतारकर दौलत ले जाना चाहता था। शांता एक ऐसा दस्तरख्वान थी जिससे वह सैर हो चुका था। अब उसे शांता में कोई कशिश नजर न आती थी। दौलत हो तो शांता से कहीं हसीन लड़कियां मिल सकती थी। दौलत हो तो क्या चीज़ नहीं मिल जाती। सेठी ने शांता का मोहरा बनाया था और वो शांता की मदद के बगैर फरार होने में कामयाब नहीं हो सकता था। दुबई में उसकी एक और महबूबा थी। वो डकैती की वारदात करने के बाद सीधा वहाँ पहुँचा और वो एक फ्लैट में रहती थी। उसने ये 7 दिन और रातें एक साथ गुजारी थी। जब वो वहाँ से आ रहा था उसने अपनी महबूबा का गला घोंटकर हलाक कर दिया था। शांता इस फरेब और खुशफहमी में मुब्तला थी कि सेठी सिर्फ उसका है और उस दौलत में उसका निसफ हिस्सा है। वो भी एक जुर्म पेशा थी, कातल थी, कानून को मतलब थी। शांता दौलत से कम नहीं था और वो पुरकशिश खजाने से भरपूर थी। और मैंने एक लम्हे के लिए ये सोचा कि वो उस रास्ते पर क्यों चल पड़ी। वो एक अच्छी औरत, अच्छी बीवी और माँ भी बन सकती थी। बेरहम हालात और ख्वाबों ने उसे अनजाने रास्ते पर डाल दिया। मैं ये बात जानता था कि जो होना है वो होकर रहेगा। क्यों ना थोड़ी बहुत लगावट की बातें कर ली जाएं। मेरी जान शांता, और मैंने प्यार भरे लहजे में कहा, एक बोसा ना सही, एक सिगरेट तो पिला दो, मेरे पास आओ। ना, फौरन ही सेठी ने चीख कर कहा, इसके पास ना जाना वरना ये तुम्हें दबोच कर दस्त दराजी शुरू कर देगा। सेठी यार, और मैंने कदरे बेतकल्फ़ी से कहा, मुझे दस्त दराजी की क्या ज़रूरत है जबकि मैं इसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार चुका हूँ। इसने मुझसे मोहब्बत के अहद व पैमान किए। मैं इसकी मेहरबानी और फ़यादी को कभी नहीं भुला सकता और ना वो शेख उसे भुला सके होंगे जिन पर उसने अपने आप को निछावर किया। उसने मुझे ऐसा असीर बना लिया है कि मैं उसे कभी नहीं बोल सकता। लेकिन यार सेठी, तुम इस गरीब को मौत की नींद क्यों सुला देना चाहते हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सेठी बिगड़ कर बरहमी से बोला। वो दिल में भौंचका था कि इस बात की मुझे क्यों कर और कैसे खबर हुई। मैं क्यों इसे मौत की नींद सुलाऊंगा? ये मेरी महबूबा है, मोहब्बत है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। सेठी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है तुम सोच भी नहीं सकते हो, शांता बोली। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी आत्मा है, मेरी जान है। उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि मुझे मौत की नींद सुला दे? वो मेरे बगैर एक दिन नहीं रह सकता है। मैं बताता हूँ कि वो तुम्हें क्यों और किस लिए मौत की नींद सुलाना चाहता है। मैंने सेठी की तरफ पहले देखा और फिर शांता की तरफ, जिसके चेहरे पर मेरे लिए नफ़रत की सुर्खी थी। वो तुमसे 6 माह से मोहब्बत के नाम पर फरेब दे रहा है और उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह पामाल किया है और रोंदा, और उसी तरह शेखों ने, और उसने तुम्हारे सौदे करके बहुत माल कमाया। इसने बैंक में डकैती की, 1 अरब का माल इसके हाथ लगा और उसे इस बात का भी ज़रा और खौफ है कि कहीं तुम निसफ हिस्सा ना तलब कर लो। ना देने की सूरत में तुम उसे फंसा ना दो और फिर उसके माजी और जुर्म से खूब वाक़िफ़ हो चुकी हो और तुम्हारे पास इसके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है। तुम किसी भी वक्त तुम्हारे आस्तीन साबित हो सकती हो। क्यों ना जहरीली नागन का सर कुचल दिया जाए और फिर माल में से निसफ हिस्सा भी ना देना पड़ेगा। सेठी इस तरह से उछला जैसे उसे करंट लगा हो, बिजली की नंगी तार को छू लिया हो। उसे यकीन नहीं आया कि एक ऐसा राज जो उसके सीने में दफन है, उसकी मुझे खबर कैसे हो गई। मैंने जो बातें कही थी उनमें से एक बात भी गलत ना थी और उसके चेहरे पर 12 बजने लगे और उसका बस चलता तो वह मुझे गोली से उड़ा देता। चूँकि उसे मालो दौलत समेत दुबई पहुँचना था और इतनी बड़ी लांच समुंदर से गुजार कर ले जाना मजाक नहीं था, उसके बस की बात भी ना थी। तुम शांता बोली, और तुम मुझे सेठी से बदजन कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारा साथ दूं और तुम सारा माल हड़प लो। तुम हम दोनों को आपस में लड़ा रहे हो और सेठी को मैं जितना जानती हूँ तुम या कोई और भी नहीं जानता। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने की। मेरा सेठी, मेरा महबूब, मेरा साथी हरगिज़ ऐसा नहीं है। तुम अपनी चोंच बंद रखो।
शाबाश शांता। और सेठी ने उसके करीब होकर उसे अपनी आगोश में लेकर उसकी आंखों में झांका। तुमने इसे जो जवाब दिया उसने उसकी तबीयत साफ कर दी होगी और इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें हलाक कर दूं। मैं इन दोनों को भी समुंदर बुर्द नहीं करूंगा, इस शर्त पर कि ये हमें दुबई पहुंचा दे। मैं इन्हें इनाम भी दूंगा, 2 लाख रुपए नकद। और मैंने उसकी इस बात का जवाब देने से पहले तरलोक की तरफ देखा। उसका चेहरा मस्क नज़र आ रहा था। और फिर मैंने शांता पर नज़र डाली जो सेठी की आगोश में बड़ी जज्बाती हो रही थी। तरलोक का ख्याल ये था कि अगर मैं उसकी बात मान लेता आज ये नौबत ना आती। तरलोक उसे दिल में गालियाँ बक रहा था, मुझे सेठी जला रहा था शानियत शांता को प्यार करके। शांता, मैंने कहा कि तुम इसकी बातों में ना आना वरना बेमौत मारी जाओगी। इसने तुम्हें मोहरा बनाकर अपना मकसद पूरा कर लिया। और उसे फ़ौरन ये पूछो कि मिस कलाडिया कौन है जो इसके फ्लैट में रह रही है। ये कलाडिया कौन है? और शांता ने उसके बाजों में कसमसाई और पूछा, क्या वह तुम्हारे फ्लैट में रह रही है? सेठी, मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या ये सच है? शांता इतना कहकर उसके बाजुओं की गिरफ्त से निकल आई। सेठी की आंखें फैल गईं और उसका दिलो दिमाग बुरी तरह चकरा गया था और उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कलाडिया के बारे में कैसे और क्यों कर जानता हूँ। मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। उसने इस बात को शांता को भी राज रखा था। मेरी इंकिशाफात पर उस पर बिजली गिरा रहे थे। वो जल्दी ही संभल गया। शांता, ये गप्पे हाँक रहा है और अंधेरे में तीर चला रहा है। सेठी ने अपने कुछ कांटों पर जुबान फेरी। बस ये चाहता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह मेरे खिलाफ करके अपना उल्लू सीधा कर ले। हमारे पास जो दौलत है इस पर कब्जा कर ले, हमें समुंदर में फेंक दे और उसकी शातराना बातों में ना आओ, उसकी एक ना सुनो। शांता मेरी जान, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कलाडिया कौन है। मैंने कहा, कलाडिया का पूरा नाम क्लाडिया कार्मन है। ये फ्रांसीसी रकासा है। पेरिस के एक नाइट क्लब में अपने फ़न का मुजाहरा करती थी। 2 माह से वो दुबई में गोल्डन नाइट क्लब और निजी महफिलों में अपने आज़ादाना फ़न का मुजाहरा करके शेखों से खूब दौलत लूट रही है। सेठी ने उसे अपने जाल में फांस लिया। 20 दिन पहले सेठी ने तुम्हें यह कहकर मुंबई रवाना कर दिया था कि मैं आकर डकैती की ऐसी ज़बरदस्त वारदात करूँगा कि सारी दुनिया और पुलिस दंग रह जाएगी। मेरा ये अजीम कारनामा अक्ल हैरान कर देगा। लोग अश कर उठेंगे। फिर तुम हिंदुस्तान आ गई, एक अपार्टमेंट बन किराए पर लेकर रहने लगी। क्या ये गलत है? नहीं, शांता ने हाँ में सर हिला दिया। ये बात गलत नहीं, लेकिन ये बात मैंने तुम्हें तो नहीं बताई थी। मगर तुम मेरी जान, मेरे दिल की मलका, राहते जान, बस तुम खामोशी से मेरी बात सुनते जाओ। मैंने दरमियान में तेजी से कहा, अगर मगर के सवाल मत करो। क्लाडिया कार्मन जिस फ्लैट में रह रही है वो एक लग्जरी होटल का था, एक सूट से कहीं आरास्ता, लेकिन उसका किराया होश रुबा था। सेठी का जो फ्लैट है वो भी VIP है, किसी शाही महल की तरह। ये एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन हरिनाथ किशन का है और उसकी बीवी जो एक आम किस्म की औरत है। उससे सेठी ने तलकात अस्तवार कर लिए। मियाँ बीवी अफ़गानिस्तान गए ताकि हीरवन यूरोप ले जाएं और उसकी चाबी सेठी को दे गए। मियाँ बीवी मनशियात ले जाते हुए लंदन एयरपोर्ट पर धर लिए गए और उन्हें 7 बरस की सज़ा हो गई। गो कि क्लाडिया कार्मन की इतनी आमदनी थी कि वह उसका किराया अदा कर सकती थी। सेठी ने उसे अपने फ्लैट पर रात के खाने पर मदऊ किया और उसे ये फ्लैट बहुत पसंद आया। सेठी ने पेशकश की कि एक शर्त पर रिहाइश मुफ्त में इख्तियार कर सकती है कि बीवी और महबूबा की तरह रहे। और फिर उनके दरमियान एक मुआहदा हो गया और उसमें ज़रा बराबर भी मगबालगा नहीं। तुम एक बेहतरीन कहानी नवीस बन सकते हो। सेठी अंदर ही अंदर पीछो ताप खाते हुए बोला, तुम्हारे अंदाज़े, क्यासात और कहानियाँ बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ और सनसीखेज हैं। फुर्सत में सुनेंगे। ज़रा अपने दोस्त की खबर लो। आखिर तुमने बहरी रास्ते से फ़रार होने का मनसूबा क्यों बनाया? मैंने अनजान बनकर पूछा। दरअसल मैं उसे बातों में लगाना चाहता था। मैंने लांच का पहिया दोबारा संभाल लिया। मेरी बातों और इंकिशाफात ने उसका खून खुश्क कर दिया था, इसलिए कि यह वाहद और आसान रास्ता है। सेठी ने जवाब दिया, पुलिस वालों का ख्याल इस तरह भूले से भी नहीं आ सकता। उनमें इतनी अकल कहाँ होती है? तुमने देखा और सुना होगा कि पुलिस जब किसी असल मुजरम को पकड़ने में नाकाम हो जाती है
तो वो किसी भी बेगुनाह को पकड़कर अपनी अहलियत और कारकर्दगी साबित करती है। उन्होंने चारों तरफ के रास्तों की नाकाबंदी कर दी, मगर उन्हें माहीगीरों की लांचों का कोई ख्याल नहीं आया और ना आ सकता है। सेठी, वाकई तुम बहुत ज़हीन और बासलाहियत हो, मैंने कहा। तुमने जो तनहा इतनी बड़ी दलेराना डकैती की वारदात की है, मैं अब और उस वक़्त दिल में अश अश कर रहा हूँ, और उस कारनामे की दाद ना देना बदज़ौकी है। वो खुश हो गया था, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही मैं उसका कोई जवाब सुनना चाहता था। फिर मैं उससे और नताशा से पूरी तरह बेनियाज और बेपरवाह होकर शीशे के पार समुंदर की तरफ मतवज्जा हो गया। शांता और सेठी सरगोशियाँ तरलोक भी सुन रहा था और मैंने उसकी तरफ देखा। उसके बशरे से ऐसा लग रहा था कि उन सरगोशियों ने उसके जिस्म में थरथरी पैदा कर दी, और उसके जहन में क्या था इस वक्त मेरे जहन में मुंतकिल हो गया। वो अपनी बीवी और बच्चों की तरफ से परेशान था। ये ख्याल रह रह कर उसे किसी जहरीले सांप की तरह डस रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। वो मेरे पास या करीब होता तो मैं उसे दिलासा देता, ताहम मैं बहुत मुतमिन और पुरसकून था। मुझे वक़्त का इंतज़ार था। मैं जानता था कि वो लम्हा और वक़्त ज़रूर आएगा जिसका मैं मुंतज़िर हूँ। सब्र और इंतज़ार की बात थी, शर्त सब्र की थी। वो दोनों मेरे हक़ में थे। चूँकि अब उन दोनों को इस बात का अंदेशा नहीं रहा कि मैं और तरलोक इस पर हमला आवर हो सकते हैं, और उसने अपनी दानिश में ऐसा सबक दे दिया था कि हमारे होश ठिकाने आ गए थे। वो इस बात से फ़ायदा उठा रहे थे। शीशे में उनकी हरकतें साफ नज़र आ रही थी, जिससे वो दुनिया माफिया से बेनियाज हो गए। जज्बात की रुएं बह रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। बहक और चहक रहे थे, और उनका बस चलता तो वो कैबर में जाकर हद से तजावज़ भी कर जाते। मेरी मौजूदगी ने उन्हें बाज रखा हुआ था। मेरे तन बदन में एक आग सी लग गई, क्योंकि तरलोक शदीद ज़ख्मी था और दोनों ने उसकी खबरगिरी नहीं की थी। मैं इसलिए भी तरलोक की तरफ मतवज्जा नहीं हुआ कि इस हालत में भी सेठी का रिवाल्वर वाला हाथ आज़ाद था। वह मुझसे गाफिल नहीं हुआ था। उसे तरलोक की तरफ से कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि तरलोक काबिल रहम हालत में पड़ा हुआ था। मैंने लांच की रफ्तार तेज़ कर दी तो समुंदर की लहरों पर वो डोलने लगी। शांता ने उसके बाजों से निकलकर अपना हुलिया दुरुस्त किया। सेठी ने उसका लिबास और बाल बेतरतीब कर दिए। चंद लम्हों के बाद वह दोनों मेरे पास आ गए, खड़े हो गए। क्या तुम फिर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो? सेठी ने मुझे मशकूक नज़रों से घूरते हुए तेज़ो तंद लहजे में कहा। इसमें इतनी अकल कहाँ है? शांता ने मेरे हाथ से ढेर लेते हुए मुझे एक धक्का देकर हटा दिया। तुमने देखा नहीं कि ये कितनी सादगी से मेरे बिछाए हुए जाल में आ फंसा था? ये जो बकवास कर रहा था कि उस पर मैं मेहरबान हुई हूँ, ये फजूल है, और मैंने उसे सिर्फ वो एक मर्तबा मनमानी करने दी थी और उसे शादी का चारा डाला था। मैं शांता की बात सुनकर दिल में हंस पड़ा। मैंने सोचा कि इनके सामने सबूत पेश करूं। मैं कुछ बातें बताता तो शांता उस सबूत को किसी कीमत पर जुटला नहीं पाती, और सेठी भी मेरी बात और उस ठोस सबूत को तस्लीम कर लेता। फिर शायद शांता इस बात को बर्दाश्त ना करती और सेठी से किसी बहाने से रिवाल्वर लेकर मुझे और तरलोक को निशाना बना देती। वो सेठी को हर तरह से बेवकूफ़ बना रही थी। दरअसल उसके ज़हन में मेरी बातों से नतीजा अखज़ कर या उस लम्हे एक मंसूबा बना लिया था। उसे मेरी बहुत सारी बातों का यकीन आ गया था और उसमें इसने सच्चाई तस्लीम कर ली। उसने मेरी इन बातों को इसलिए झुठलाया था कि कहीं उसे भदक ना जाए, और वो एक ऐसे मौके की तलाश में थी कि सेठी को काबू में कर ले और इसका रिवाल्वर मिल जाए। सारा खेल उस एक रिवाल्वर का था। वो सबसे पहले सेठी को जहन्नम रसीद करना चाहती थी। शांता मेरी जान, सेठी ने कहा, क्या मैं बच्चा हूँ? ये सुअर हम दोनों में नफाक और फूट डालने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी झोली में नहीं गिरी हो। मुझे तुम पर भरोसा है, और उसकी बात की कोई परवाह ना करो। हमें दुबई पहुँचना है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये दोनों हरामजादे फिल्मी हीरो बनने की कोशिश ना करें। कि अब मैं अपने दोस्त के पास जा सकता हूँ? मैंने सेठी को सवाल की नज़रों से देखा, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। सेठी ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन देखो, इस बहाने कोई शरारत ना करना, शराफत से रहना। जाओ। तरलोक ने खुद पर काबू पाकर उठने की कोशिश की, और मैंने उसे उठने में मदद दी।
फिर उसके चेहरे से खून साफ किया और फिर उसके सीने पर पट्टी बांधी और फिर वो निस्बतन आराम से लिटा दिया। उसका तनफ़्फ़ुज़ मध्यम और भारी था। मेरा ख्याल था कि उसकी 2-1 पिसलियाँ टूट चुकी होंगी। उस वक्त सेठी किसी उकाब की तरह चौकन्ना था और उसने एक लम्हे के लिए भी अपनी तवज्जो मुझ पर से नहीं हटाई। शांता जो धील व्हील संभाले हुए थी वो भी हमारे तरफ वक्फे वक्फे से देखे जा रही थी। हम दोनों दोबारा व्हील हाउस की तरफ आए और मैंने शांता की तरफ देखे बगैर व्हील उसके हाथ से ले ली। शांता करीब ही खड़ी लहक रही थी, आतिश फशां की तरह दहक रही थी। मेरे ज़हन में फ़ौरन एक ख्याल कूंदा बनकर लपका। मैं 3-4 बरस पहले तरलोक की लांच पर 2-1 मरतबा आया था और हम मछली पकड़ने समुंदर तक की हदूद से बाहर भी गए थे। रास्ते में लांच में खराबी पैदा हुई थी तो तरलोक ने बताया था कि उसे क्यों कर दुरुस्त किया जाता है। मैंने फिर थ्रोनल में अपनी महारत के तजर्बे को आजमाने के लिए उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की। ऐसी गड़बड़ की कि जिसकी वजह से इंजन हल्की सी गड़गड़ाहट से खामोश हो गया और लांच को एक शदीद झटका लगा। ये क्या हो गया? और सेठी ने तशवीश भरे लहजे में पूछा और फिर उसने शांता की तरफ देखा। क्या इसने कोई गड़बड़ की? नहीं, मेरी बजाय शांता ने उस बेजारी के लहजे में जवाब दिया, कोई खराबी हो गई है। क्या खराबी? यही बता सकेगा। इंजेक्टर में एयर लॉक हो गया है। मैंने कहा, शायद अक्सर ऐसा इसकी वजह से होता है जब लांच की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और उसकी रफ्तार दरमियाना रखना होती है। तुम्हारी महबूबा ने उसकी रफ्तार बहुत तेज़ कर दी थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। इसे ठीक करने में कितना वक्त दरकार होगा? सेठी ने पूछा। तुमने व्हील शांता को क्यों दी थी? इसे मना करना था। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट लगेंगे, मैंने जवाब दिया। तुम बेफिक्र रहो, परेशानी की बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगा। शांता ने खुद से आकर व्हील संभाल ली थी। क्या तुमने नहीं देखा था कि उसने मुझे ज़ोरदार धक्का देकर हटाया था? मैं उसे रोकता और मना करता तो तुम्हें गुस्सा आ जाता, इसलिए मैं खामोश हो गया था। जबकि लांच चलाना औरत के बस की बात नहीं। जो होना था वो हो गया। चलो देखो क्या खराबी हो गई है और उसे कैसे दूर की जा सकती है। जल्दी करो। उसने रिवाल्वर से मुझे इंजन रूम तक कवर किए रखा। वो जीना तंग देख कर रुक गया और वो इंजन रूम में नहीं उतरा क्योंकि तेल और केमिकल की बू फैली हुई थी और फिर उसका ख्याल था कि कहीं वो इंजन रूम में जाकर किसी जाल में न फंस जाए। उसने शांता को आवाज़ देकर बुलाया और जब वो आई तो उसने कहा कि तुम उसके साथ इंजन रूम में उतर जाओ। नज़र रखना कि ये कोई गड़बड़ ना करे। मैं व्हील हाउस के पास हूँ ताकि उसके दोस्त पर नज़र रखूँ। शांता ने अंदर झांक कर देखा और फिर वो कदरे हचकिचाई। ऐसा करो, रिवाल्वर मुझे दे दो ताकि मैं इसे कोई ऐसी वैसी हरकत करने ना दूं। इस सुअर का कोई भरोसा नहीं, कोई चाल चल सकता है, बाजी पलट ना जाए। रिवाल्वर को मैं अपने पास ही रखूँगा ताकि इसके साथी को हीरे बनने ना दूँ। सेठी ने कहा, तुम घबराओ नहीं। अगर इसने दस्तरादी और गैर शास्ता हरकत की तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं आकर इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूँगा। फिर वो तेज़ी से व्हील हाउस की तरफ लपक गया कि कहीं तरलोक उसकी गैर मौजूदगी से कोई कदम ना उठाए। मैं जीने से इंजन रूम में उतर गया। फर्श पर कदम रखकर मैंने पलट कर देखा। वो साड़ी में मलबूस थी। जब वो उतरने लगी तो उसका पैर साड़ी के नाल में आ गया और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। वो गिरने लगी। मैंने अपने बाजू फैला दिए और वो उनके हिसार में आ गई और मैंने उसे संभलने और बाजुओं से निकलने नहीं दिया और उसके चेहरे पर झुक गया। मेरा ख्याल था कि वो उस नाजुक बदन का समसाएगा, वो तर्ज करेगी, नफ़रत और हकारत से पेश आएगी, लेकिन उसने अपने आप को मेरी रहमो करम पर छोड़ दिया और उसने मेरी हरकत पर सेठी को पुकारा नहीं। वो जज्बाती हो गई, खुद सपुर्दगी और बालाहानापन से पेश आई तो मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई और उसका जहन एक मनसूबा था। वो 2 धारी तलवार की तरह थी। हम दोनों बहुत दूर तक चले गए। हम दोनों की वापसी हुई तो उसने अपना हुलिया फ़ौरन दुरुस्त किया। मेरी जान, उसने प्यार भरे लहजे में मुखातब किया, तुम मेरे रवैये और बातों का कुछ ख्याल ना करना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमने सेठी की जो असलियत बताई मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ। तुम मेरी करो ना। वो एक मकार औरत थी और उसके लहजे से रियाकारी और मुनाफ़क़त टपक रही थी। उसने मुझे अपने जाल में फांसने के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। वो जितनी हसीन थी उतनी ख़तरनाक भी थी और मैंने उसकी आंखों में झांका।
शांता, तुम ऊपर आ जाओ, मामूली सी खराबी है, मैं ठीक करके 2-3 मिनट में आता हूँ, कहीं इसे हम दोनों पर शक ना हो जाए। और मैंने उसे दानिस्ता ऊपर भेज दिया। फिर सेठी शांता को वहाँ खड़ा करके आगे आ गया था और वो झुक कर अंदर झांकने लगा। मैं बाजार इंजन में मसरूफ़ था। दर हकीकत मुझे किसी और चीज़ की तलाश थी ताकि मैं उससे फ़ायदा उठा सकूं और उस खबीस पर काबू पा सकूं। दलदल में डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाए तो वो पुरउम्मीद हो जाता है। मैं भी जैसे तिनके तलाश कर रहा था। आखिरकार मुझे उस दलदल में तिनका मिल गया। मुझे जल्द ही मतलूबा चीज़ मिल गई और उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैंने अपने बशरे से खुशी का इजहार होने नहीं दिया, वरना सेठी फ़ौरन ही मशकूक हो जाता और तय पे पहुँच जाता। वो चीज़ जर्द प्लास्टिक का एक चमकदार पिस्तौल था। वो इंजन रूम के एक कोने में पड़ा हुआ था। ये वही पिस्तौल था जो तरलोक का एक बच्चा इंजन रूम में खेलते हुए भूल गया था। मैं 2-1 दिन पहले उसकी मौजूदगी में बहुत बरहम था और मैंने तरलोक से कहा था कि अब वो आइंदा बच्चों को खिलौने लाने और लॉन्च में खेलने ना देगा। ये पिस्तौल सेठी के रिवाल्वर से कहीं ख़तरनाक और कारआमद था। मैं जानता था कि उससे क्या काम लिया जा सकता है। मुझे उस बच्चे पर बहुत प्यार आया जो ये पिस्तौल बेकार समझकर फेंक गया था। यूँ तो उसकी कीमत 10 रुपये भी ना थी, लेकिन इस वक्त ये हज़ारों से भी बढ़कर थी। एक तरह से ये फरिश्ता था। अब मेरी और तरलोक की जान को किसी किस्म का खौफ और ख़तरा नहीं रहा था। मैं उसे उलट पलट कर देख रहा था। सेठी जो ऊपर वाले ज़ेने पर खड़ा हुआ था, उसने बड़े सख्त लहजे में ललकारा, ये तुम इतनी देर से इंजन रूम में क्या कर रहे हो? 10-12 मिनट हो रहे हैं। तुमने कहा था कि 6-7 मिनट का काम है। मैं बेड़ियाँ चेक कर रहा हूँ, मैंने चीख कर जा दिया। अब सिर्फ 2-3 मिनट का काम बाकी रह गया है, अभी आ रहा हूँ। और मैंने जल्दी जल्दी एक बैटरी सेल का ढकना खोला, उसे आबी पिस्तौल को सेल के दहाने में दाखिल करके लीवर खींचा तो बैटरी में मौजूद तेज़ाब भर गया। अब ये गोया खिलौना पिस्तौल पानी के बजाय तेज़ाब से भर गया था। मैंने बैटरी का ढक्कन बंद किया और वापसी के लिए मुड़ गया। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मैंने वह पिस्तौल जेब में रख लिया तो वो बाहर निकल आया। मैंने उसे फिर से रोकने की कोशिश की तो सेठी की निगाह पड़ गई और उसने अपना खौफनाक किस्म का रिवाल्वर मुझ पर तान लिया। मैंने जो ही ऊपर कदम रखा, उसने रिवाल्वर की नाल मेरी पेशानी से लगा दी। ये तुमने अपने जेब में क्या छुपाया है? वो किसी जहरीले सांप की तरह फुंकारा और वो बहुत ही मशकूक हो रहा था। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? मैंने जेब से आबी पिस्तौल निकाल कर उसे दिखाया। ये एक खिलौना पिस्तौल है, इसे अच्छी तरह से देख लो। असली पिस्तौल नहीं है, प्लास्टिक का और 10 रुपये का भी नहीं। सेठी ने मेरे हाथों से पिस्तौल को नहीं लिया और उस पर एक उचटती सी निगाह डाली। ये तुम क्यों कर लाए हो? इसने पूछा। ये मुझे नीचे पड़ा हुआ मिल गया। मैंने उसे बताया कि ये तरलोक के एक बच्चे का है। मैंने सोचा शायद वो इसे ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हो, इसलिए मैंने उसे ले लिया और उसे दे दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें इस बात की तवक्का है कि तुम ये पिस्तौल तरलोक के बच्चे को पहुंचा दोगे? सेठी ने इस्ताहिया लहजे में पूछा। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं उसे कैबिन में रख छोड़ूंगा, जब हम वापस होंगे तब उसे दे दूंगा। मैंने फैसला किया है कि तुम्हें और तरलोक को जहन्नम में पहुंचा दूं। मैंने अटल इरादा कर लिया है। और उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया, लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो, इसलिए कि ये अरमान दिल में रह जाएगा और जब तुम हमें जहन्नम में पहुंचाना चाहते हो तो ये पिस्तौल हमारे पास ही रहने दो। और मैंने कहा कि इसे लेकर क्या करोगे सेठी? मैं नहीं चाहता कि जब तुम जहन्नम में पहुंचो तो इसमें पानी भरकर जहन्नम की आग की कोशिश करो। वो रौनक से बोला, सेठी आखिर तुम क्यों हम दोनों को जहन्नम में पहुंचाना चाहते हो? मैंने अनजान बनकर खौफ जाहिर करते हुए पूछा। इसलिए कि तुम दोनों के लिए उससे अच्छी जगह कोई और नहीं। मैं शांता को तुम्हारे साथ रवाना कर दूंगा और तुमने उसके साथ मेरा दिल बहलाया। वो तुम पर भी मेहरबान रही है। वो बड़ी फ़याज़ औरत है, तुम्हें जहन्नम में हर वक्त खुश रखने की कोशिश करेगी और उसकी मिसाल एक कुतिया की सी थी है। सुनो सेठी, मैंने कदरे आर्जी से कहा, जहन्नम जहन्नम होता है। अभी तो मैं जवान हूँ, तरलोक बाल बच्चे वाला है और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। आखिर हमारा क्या दोष है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम हम दोनों के बारे में फ़ैसला कर चुके हो जहन्नम में धकेलने का? हमें वापस जाने देना, हम तो तुम्हारा बाल तक बीका नहीं कर सकते। प्लीज़ सेठी।
بات یہ ہے کہ تم میرے بارے میں جو جانتے ہو اس نے مجھے دنگ کر دیا ہے۔ وہ بولا، اور تم میرے اور میرے ارادوں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ شانتا کے بارے میں بھی تم بہت خطرناک ہو۔ تم ہمارے آستین ہو اور تمہارا زندہ رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے میں نے شانتا اور تم دونوں کو جہنم ارسال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرنا۔ اس نے اپنے بدتیسی کی نمائش کی۔ وہ بہت مسرور نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت محتاط تھا۔ خود کو پوری طرح محفوظ سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کے اور شانتا کے بارے میں کس طرح اور کیسے جانتا ہوں۔ میں نے اس کا ذہن پڑھ لیا۔ وہ واقعی ہمیں موت کی نیند سلا دینا چاہتا تھا۔ میں پلاسٹک کے آبی پستول کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور اس کے ہونٹوں پر حقارت میز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر یہ حقیقی پستول ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کیا تم اسے استعمال کرنے کی جرأت کر سکتے تھے؟ اسے اپنے آپ پر بڑا ظلم تھا اور اس میں رعونت بھری تھی۔ میں نے وہ کھلونا پستول اٹھایا اور پھر اس کے چہرے سے 1 فٹ کے فاصلے پر ہاتھ روک لیا تھا اور اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر دیں۔ پھر میں نے ہونکو کی طرف سے مخاطب کیا، اگر میرے پاس نقلی پستول یا ریوالور ہوتا تو میں تمہاری طرف کر کے اس طرح چلا دیتا، اور میں نے توقف کر کے گہرا سانس لیا اور اس طرح تمہارے دونوں آنکھوں کے درمیان کا نشانہ لے کر فائر کر دیتا۔ لیکن یہ ایک کھلونا ہے۔ میرے دل میں حسرت رہ گئی ہے کہ تمہیں نشانہ بنا سکوں۔ اس نے دوبارہ ایک زوردار بھونڈا اور بے ہنگم کہکا لگایا۔ یقیناً یہ ایک اچھا مذاق ہے، مجھے پسند۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ میں نے بائیں ہاتھ میں دبے ہوئے کھلونا پستول کا لیور اچانک کھینچ لیا تھا۔ صرف 1 فٹ کے فاصلے سے تیزاب کی دھار اس کی دونوں آنکھوں پر پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا تو میں نے دائیں ہاتھ سے اس کا ریوالور جھپٹ لیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ آنکھوں پر تھے اور وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ اس کی چیخوں سے فضا تھرا رہی تھی اور سمندر کی لہروں کے شور میں دب رہی تھی۔ شانتا اس کی چیخیں سن کر تیزی سے ادھر آئی اور میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حسین چہرہ اس ناگہانی صورتحال سے اچانک سفید پڑ گیا۔ وہ وہیل ہاؤس کی دیوار سے چپک گئی۔ لانچ اپنی منزل کا تعین کیے بغیر چل رہی تھی۔ اب ہم واپس ہو رہے تھے۔ بمبئی کا ساحل زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ میں ریوالور لیے شانتا کی طرف مڑا۔ میری جان، شانتا ہذیانی انداز میں چیخی، میرا اور تمہارا تعلق ٹوٹا سے نہیں ہے جانی، ہمارے پاس بہت بڑی رقم اور سونا بھی ہے، 1 ارب سے زیادہ رقم۔ اس رقم سے ہم دبئی میں عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیوں نہیں میری جان، ہم یقیناً ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت جب تم اپنے کیے کی سزا بھگت کر 30 برس کی سزا کاٹ کر آؤ گی، مگر اس وقت تک تمہارا حلیہ کیا ہو چکا ہوگا۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے جو جرائم کیے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ نہیں، ایسا مت کہو پیارے، ہمارے پاس کافی وقت اور کافی دولت ہے، کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ بالکل نہیں شانتا، ترلوک کو بھی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ ہم واپس بمبئی شہر جا رہے ہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر وہیل ہاؤس میں داخل ہو کر وہیل کو سنبھال لیا۔ اب سارا کھیل ختم۔ میں ایک پرائیویٹ سراغر سا ہوں۔ میں کسی مجرم کی اعانت کرنا جرم سمجھتا ہوں۔ تم فیصلہ کرو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ شانتا نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہ کافی دیر تک عرشے پر بت بنی کھڑی رہی، ساحل کو دیکھتی رہی جو قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کوہر اب غائب ہو چکی تھی۔ ساحل سورج کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ پتھریلا ساحل اب زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ اس نے شیشے میں جھانک کر مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی، میرے چہرے کی سپاٹ پن اور سختی کا اندازہ لگایا، اور پھر اس نے اس راہ کو اپنا لیا جس کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ قانون کے ہتھے چڑھتی تو جیل میں قانون کے محافظ اس کے ساتھ راتیں رنگین کرتے۔ ہندوستانی جیلوں میں ایسا حسین، جوان اور مجرم عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک دم سے لانچ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ نہایت بھونڈے انداز میں گری اور میں نے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، کیونکہ مجھے اس کا انجام معلوم تھا۔ اس نے اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کیا۔
اب بمبئی کی پولیس اس سے بات پرس نہیں کر سکتی، اور اس کا بے مثال حسن اور ابلتا شباب کس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا۔ گویا اس نے اپنے لیے تباہی کا دروازہ کھول کر باقی تمام دروازے بند کر دیے۔ اس نے زندگی میں پہلی اور آخری بار ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ میں نے اس کارنامے کا صحرا ترلوک کے سر باندھ دیا، اور اس نے اپنے محلے میں ایک بہت بڑا سپر اسٹور کھول لیا۔ اس نے مجھے انعامی رقم میں سے رقم دینا چاہی تھی، لیکن دوستی کا وہ نام البدل نہیں تھا، اور میں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے، اور سیٹھی کو عدالت نے سزائے موت سنائی، اور پھر اسے ایک دن پھانسی دے دی گئی۔ اور یوں دوستو یہ کہانی بھی ختم ہوئی باقی کہانیوں کی طرح۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔